मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में लोकल बॉडी इंतखाबात का शेड्यूल जारी, 3 मरहलों में होंगे इंतखाबात। प्रजवानी में मौसूल होने वाली शिकायतों को ओहदेदारान पूरी यकसुई के साथ हल करें, जिला कलेक्टर। आबी ज़खायर की सतह में बतदरीज इजाफा और आबी ज़खायर से पानी का अखराज। अतराफ के इलाकों में पानी ही पानी, फसलें डूब गई, किसान परेशान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात, SEC ने शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। SEC ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 9 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन। ZPTC और MPTC इंतखाबात 2 मरहलों में, पंचायती इंतखाबात 3 मरहलों में होगी। 31 अजला के 565 मंडलों में इंतखाबात। ZPTC और MPTC 23 और 27 अक्टूबर ZPTC और MPTC के इंतखाबात 23 और 27 अक्टूबर को होगी। पंचायती इंतखाबात 31 अक्टूबर, 4 और 8 नवंबर को होगी। पोलिंग के दिन पंचायती इंतखाबात के नतायज। ZPTC और MPTC के इंतखाबात के नतायज 11 नवंबर को होगी। కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। గత వారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు మాకు ఏదైతే రూరల్ లోకల్ బాడీస్లో వేకెన్సీ ఏర్పడిందో వాటికై ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి కంకరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాంతో మేము ఒక టైం షెడ్యూల్ని ఖరారు చేసుకోవడం కూడా జరిగింది। మీ అందరికీ తెలుసు, స్థానిక సంస్థలు రూరల్ ఏరియాస్లో గ్రామ పంచాయతీలు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీల స్థానాలు ఏవైతే వేకెంట్గా ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన గ్రామవారీ వేకెన్సీలు, అలాగే ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ వారీగా వేకెన్సీలు నిన్న సాయంత్రం అన్ని వివరాలతో జిల్లా ఎలక్షన్ అథారిటీస్ అందరూ కూడా గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేశారు। అది కూడా మాకు నిన్న సాయంత్రం అందజేయడం జరిగింది। మరి ఈసీఐ దగ్గర నుండి ఎలక్టరల్ రోల్స్ తెప్పించుకొని వాటిని పోలింగ్ స్టేషన్ వారీగా
వార్డుల వారీగా, గ్రామ పంచాయతీ వారీగా, ఎంపీటీసీల వారీగా కూడా మేము పబ్లిష్ చేసి ఎలక్టరల్ రోల్స్కి సంబంధించి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్తో కూడా జిల్లా ఎలక్షన్ అధికారులు మీటింగులు పెట్టి సెప్టెంబర్ 10 నాటికి ఈ ఎలక్టరల్ రోల్స్ని పబ్లిష్ చేయటం అన్నది జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీలకు కూడా, ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీలకు కూడా ఉపయోగించేటటువంటి ఎలక్టరల్ రోల్స్ ఇవి. ఈసీఐ కొత్త నిబంధనలు అనుసరించి వారు జూలైలో ప్రచురించినటువంటి ఎలక్టరల్ రోల్స్, అలాగే జూలై 15వ తారీఖు వరకు సవరించినటువంటి రోల్స్ మాకు డేటాను వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న పిదప మండలాల వారీగా జిల్లా ఎలక్షన్ అధికారులు ఎంపీడీఓల ద్వారా, డిపిఓల ద్వారా ఈ ఎలక్టరల్ రోల్స్ అన్నది విభజించి అదేవిధంగా డ్రాఫ్ట్స్ కూడా ఇచ్చి తదుపరి ఆ ఒక డ్రాఫ్ట్ మీద అబ్జెక్షన్స్ కానీ, రిమార్క్స్ కానీ కాల్ ఫార్ చేసి ఎంత వర్షాలు వచ్చినా సరే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ అథారిటీస్ చాలా చక్కగా ఎలక్టరల్ రోల్స్ ఫైనల్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు. తదుపరి ప్రిపరేటరీ యాక్టివిటీస్ చిన్న చిన్నవి ఉంటే అవి కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. మెయిన్గా ఇవి రెండే, వేకెన్సీస్ని గెజెట్ చేయటం, ఎలక్టరల్ రోల్స్ని పబ్లిష్ చేయటం అనేది రెండు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు కాబట్టి వాటిని పూర్తి చేసుకున్న పిదప ఇప్పుడు ఈ వేకెన్సీస్కి టైం షెడ్యూల్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు మీ ద్వారా అందరి ఓటర్స్కి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. ఈ టైం షెడ్యూల్ 31 జిల్లాలకు 565 మండలాలలో నిర్వహిస్తాము. ఎంపీటీసీల స్థానాలు 5749 గాను, జెడ్పీటీసీ స్థానాలు 565 గాను, పోలింగ్ లొకేషన్స్ 15302 ఎంపీటీసీస్కి, 31377గా గాను నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ వివరాలన్నీ కూడా మీకు మేము పొందుపరిచి ఇస్తాము. టోటల్ జీపీస్ 12733 కాను, అలాగే వార్డులు 1,12,288 కాను, పోలింగ్ స్టేషన్స్ 1,12,770గా ఖరారు చేయటమైంది. జీపీ పోలింగ్ స్టేషన్స్ అంటే సర్పంచులకు నిర్వహించే ఎన్నికలకు గాను పోలింగ్ స్టేషన్స్ 15,522 గాను నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్లో जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 40 शिकायत मौसूल हुई। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान 40 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों की शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कारोलियन चिंगदियन मावी, म्यूनिसिपल कारपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार और एसीपी राजा वेंकट रेड्डी को अपनी शिकायत पेश करते हुए अपने खदशात का इजहार किया। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो शिकायत को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर बाकायदा मुआयना करे और मसाइल को फौरी हल करे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रिटायर होने वाले एसआई को मुबारकबाद दी। दरियासना पुलिस सब इंस्पेक्टर एमडी नासिरुद्दीन जो कि कलेक्ट्रेट में फराइज अंजाम देते हुए इस माह की 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने शालपोशी और गुलपोशी की। नासिरुद्दीन की खिदमत को सराहा गया। बैरून ममालिक में बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जागृति की जानिब से तेलंगाना की तहजीब व सखावत का बेहतरीन मुजाहरा। लंदन में मुनक़िद तकरीब में कलवा कुंडला कविता की शिरकत।
तेलंगाना की सकाफत और तहजीब को उजागर करने वाला बतकम्मा का रंगारंग त्यौहार बैरून ममालिक में तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम निहायत कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। सदर तेलंगाना जागृति कल्वा कुंडला कविता ने लंदन में जागृति शाख यूके की जानिब से मुनक़िदा अजीमुशान बतकम्मा त्यौहार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने यूके में मुकीम तेलंगाना के अफराद के हमरा बतकम्मा सजाया और सबके साथ निहायती जोश व खरोश के साथ बतकम्मा खेला। कविता ने इससे कबल खतर और माल्टा में भी बतकम्मा तकारीब में शिरकत की। उन्होंने फूलों के इस मुनफरिद त्यौहार के जरिए तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को आलमी सतह पर रोशनास करवाने का फरीजा अंजाम दिया। లండన్ వాసులందరికీ కూడా బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఇప్పటి వరకు ఇక్కడికి వచ్చి ఆడి పాడినందుకు మా ఆడబిడ్డలందరికీ ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు। క్షమించాలి, ఎక్కువసేపు ఆడలేకపోయినాం, ఎక్కడికి ఆడడానికి వచ్చినా కూడా తోస్తున్నాం। బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇక్కడికి అందరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది। మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ అంటే బతుకమ్మ, బతుకమ్మ అంటే తెలంగాణ। ఈ బతుకమ్మ పండుగ ఒక్క మన దగ్గర తప్పితే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు। ఇట్స్ అ వెరీ 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 యూనిక్ ఫెస్టివల్। అందరూ పూలతోని దేవుణ్ణి పూజిస్తారు, మనం మాత్రం ఆ దేవుణ్ణే పూలుగా భావించి పూజిస్తాం కాబట్టి మనంత యూనిక్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ లేదు। మీ అందరూ కూడా మరి యూనిక్కి అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు, కిషోర్ కానీ మొత్తం టీం అంతా, అందరికి కూడా మళ్ళొకసారి ధన్యవాదాలు। స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ పెడుతురేమే। అయితే ఇంకొక మాట మనం ఖచ్చితంగా అనుకోవాలి, ఏంటంటే బతుకమ్మ అంటేనే మనం చాలా కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నప్పుడు కూడా బతుకమ్మను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం। అప్పుడే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు మనం ఊరూరులో పెట్టుకున్నాం। కానీ ఇప్పుడు మన కర్మ ఏంటంటే జై తెలంగాణ అననటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయింది కాబట్టి ఆయన వచ్చుడొచ్చుడే తెలంగాణ తల్లి చేతులకెళ్ళి బతుకమ్మని తీసేసిండు, అవునా కదా? నేను లండన్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పాలి। ఏ రోజైతే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని మార్చిండ్రో అందరికన్నా ప్రపంచంలో ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయిందే లండన్ వాళ్ళు। ఆ రోజు మొత్తం అందరం కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేసుకొని దీన్ని ఖచ్చితంగా ఖండిస్తున్నాం, మేము ఒప్పుకోమని చెప్పారు। మీ అందరితో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ తెలంగాణ తల్లి చేతిలో బతుకమ్మ పెట్టేంత వరకు కూడా మనం पाकिस्तान को 5 विकेटों से कराई शिकस्त। टीम इंडिया ने टाइटल अपने नाम किया। तिलक वर्मा और शिवम धोबी का शानदार मुजाहरा। दुबई में होने वाले इस सनसनीखेज मुकाबले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ने टॉस हारने के बाद बैटिंग का आगाज़ किया और साहबजादा फरहान 57 साल और फ़ख्र जमान 46 साल की बदौलत एक मजबूत पोजीशन हासिल की। ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन फिर हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने तबाही मचा दी। कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने सिर्फ 33 रन के इजाफे पर 9 विकेटें गंवा दी और पूरी टीम 1 से 19 ओवर्स में 146 रन पर ढेर हो गई। ये एक गैर मुतवक्के और ड्रामाई कोलिप्स था। 147 रन के हदफ के ताक़ुब में हिंदुस्तान का आगाज़ अच्छा नहीं था। शाहीन आफरीदी और फ़हीम अशरफ ने इब्तिदाई ओवर्स में ही तबाही मचा दी। उन्होंने अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल को सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट करके हिंदुस्तानी शायकीन को खामोश कर दिया। हिंदुस्तान की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ऐसे में तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एक अहम शिराकत कायम की और हिंदुस्तान को गहरी मुश्किल से निकाला। उनकी पुरसुकून और जारहाना बैटिंग ने मैच का रुख मोड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दबाव में बेहतरीन खेल पेश किया और पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी शिराकत ने हिंदुस्तान की जीत की बुनियाद रखी। तिलक वर्मा और शिवम दुबे की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया। ये एशिया कप 2025 का फाइनल था और हिंदुस्तान ने एक बार फिर अपनी बढ़तरी साबित की। ये दोनों टीमों के दरमियान 15 दिनों में तीसरा मुकाबला था और हिंदुस्तान ने तमाम मैचेस जीते हैं। ये फतेह टीम इंडिया के लिए एक यादगार लम्हा है, जिसने दबाव में भी बेहतरीन खेल पेश किया।
दरियाए गोदावरी और मंजीरा नदी में सैलाबी पानी में इजाफे के सबब दोनों दरियाओं के कैचमेंट इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है। एसआरएसपी की जानिब से भारी मकदार में पानी छोड़ने के बावजूद पानी की सतह में कमी की कोई इत्तला नहीं। किसानों के फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसान परेशान हैं। बालकोंडा मंडल में श्रीराम सागर प्रोजेक्ट से भारी मिकदार में पानी गोदावरी में छोड़ा जा रहा। गोदावरी के गरजने और मंजीरा नदी के बहाव में सैलाबी पानी दोनों नदियों के कैचमेंट इलाकों में फसली जमीनों में दाखिल हो रहा। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। किसानों की शिकायत है कि बोधन, सालूरा, रंजल, नवीपेट और मेंडोरा मंडलों में हजारों एकड़ पर उनके खेत पानी में डूब गए। गोदावरी नवीपेट मंडल के यांचार रेलवे पुल पर पानी बह रहा, जिससे ट्रेन की आमदोरफ्त में खलल पड़ रहा। कंदाकुर्ती, बोधन, देही मंडल के रास्ते महाराष्ट्र जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई। श्रीराम सागर में भारी सैलाबी पानी दाखिल होने के साथ ही 39 फील्ड गेट्स को खोला गया और गोदावरी में 4,05,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। मंसूबे में 3,15,000 क्यूसिक की आमद हो रही। मेंडोरा मंडल के दोद्दीगाम, कोडाचिरला, चक्रियाल, पोचमपाड़ और सावेल गांव के गोदावरी नदी कैचमेंट इलाकों में फसलें डूब गई। प्रोजेक्ट के नीचे की तरफ से भारी पानी वडेरा कॉलोनी में दाखिल हो रहा। कॉलोनी के मकीन परेशान है, क्योंकि मंसूबे से पानी के अखराज में मजीद इजाफा होने का खदशा है। अवाम ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि बहाली मराकिज कायम नहीं हो रहे। मेंडोरा रेवेन्यू के एहलकार लोगों को खबरदार करें, क्योंकि गोदावरी, कोडाचिरला और सावेल गाँव के दरमियान पुल के ऊपर से पानी बह रहा। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने तमाम महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवाम चौकस रहे और इमदादी टीमें फौरी राहत के इक़दामात करें। मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती के ज़ेर एहतमाम जलसा सीरतुन नबी व नाते महफिल। आज बरोज़ पीर बतारीख 29 सितंबर को जामा मस्जिद कंदाकुर्ती में मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती के तहत होने वाले जलसा सीरतुन नबी व नाते महफिल के पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई गई। मुफ्ती मिर्जा आबिद बेग कासमी, नाजिम मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती व सदर जमीयतुल उलमा मंडल रेंजल जिला निजामाबाद ने कहा कि सरजमीन कंदाकुर्ती पर 1 अक्टूबर को मयूर फंक्शन हॉल कंदाकुर्ती में सुबह 9 बजे से जलसा सीरतुन नबी व नाते महफिल मुनक़िद किया जाएगा, जिसकी सदारत मुजाहिद कौम व मिल्लत हाफिज लई खान नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया फरमा रहे हैं और मेहमानान खुसूसी के तौर पर जिला निजामाबाद की मारूफ व मशहूर बुजुर्ग शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर नक्शबंदी, इसी तरह निर्मल से मुफ्ती रियाजुद्दीन अंसारी, नाजिम मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिलबनात, मुफ्ती जफर बेग कासमी, नाजिम मदरसा सफूरा लिलबनात, हजरत मौलाना मोहम्मद मुबीन उद्दीन कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद निर्मल, हाफिज जलाल, इमाम खतीब मस्जिद आलमगीर भीमगल तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा रेंजल मंडल की अवाम खुसूसन कंदाकुर्ती की अवाम से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे में शिरकत फरमाए। नेज़ खवातीन के लिए पर्दे का मौकूल इंतजाम किया गया है और शुरका के लिए ताम का भी नज़्म रखा गया है। इस मौके पर मुफ्ती अंजुम कासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद कंदाकुर्ती, मुफ्ती रऊफ बेग, हाफिज खुर्शीद, हाफिज मतीन, हाफिज सलीम, जनाब नसीर, मिर्जा अयूब बेग, मिर्जा शरफुद्दीन और दीगर अहबाब भी शरीक थे। मदरसा इस्लाहुल बनात कंदाकुर्ती की जानिब 1 अक्टूबर बरोज़ 4 शुम्बा सुबह 10 बजे जलसे सीरतुन नबी व नातिया महफिल रखी गई है और ये जलसा मायूर फंक्शन हॉल कंदाकुर्ती में मुनाकिद होने जा रहा है, जिसके अंदर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से हमारे ज़िला निज़ामाबाद की मारूफ व मशहूर बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब और इसी तरह निर्मल से मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब, मुफ्ती ज़फ़र बेग साहब, मौलाना मुबीनुद्दीन साहब, हाफिज़ जलाल साहब और इसी तरह हमारे मुकामी उलमा इकराम में मुफ्ती अंजुम बेग साहब, मौलाना मिर्ज़ा अंसार बेग साहब, मौलाना खालिद बेग साहब और इसी तरह मुफ्ती मिर्ज़ा सुलेमान बेग साहब, मुफ्ती रऊफ़ साहब, दीगर उलमा इकराम शिरकत कर रहे हैं और इस जलसे की सरपरस्ती कायदे मिल्लत मुजाहिद मिल्लत हाफिज लई खान साहब फरमा रहे हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं रंजल मंडल की तमाम आवाम से, खुसूसन कंदाकुर्ती के आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे के अंदर शिरकत करें और इस जलसे में ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है और इसी तरह
इस जलसे में शिरकत करने वाले तमाम ही शुरका के लिए ताम का भी नज़्म किया गया है। अमीन्स फैमिली व MBM ग्रुप का निज़ामाबाद की तिजारत में एक और कदम। सन 1990 के दहक का मुनफरिद फुटवेयर शोरूम बॉम्बे फुटवेयर का दोबारा शानदार आगाज़। नत नए डिज़ाइन के हम अक़साम के फुटवेयर अवाम के लिए दस्तियाब, अवाम इससे इस्तेफ़ादा करें। नौजवानों की पहली पसंद बॉम्बे फुटवेयर। शहर के गांधी चौक पर अमीन्स फैमिली और MBM ग्रुप की जानिब से 90 के दशक का मुनफरिद व मारूफ फुटवेयर शोरूम बॉम्बे फुटवेयर का दोबारा आगाज़ अमल में आया। इस शानदार फुटवेयर शोरूम का इफ्तिताह मोहम्मद सईदुद्दीन, मोहम्मद बशीरुद्दीन, मोहम्मद इकबालुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन के हाथों अमल में आया। इनके अलावा मोहम्मद नजीबुद्दीन, मकबूल, मोइजुद्दीन अत्तर, मोहम्मद एहतशाम उद्दीन साबिर, मोहम्मद वसीमुद्दीन, मोहम्मद जाकिरुद्दीन जासिर, मोहम्मद तनवीरुद्दीन अमान, मोहम्मद जुबेरुद्दीन नेहाल, मोहम्मद इसरारुद्दीन हाजी ने शिरकत की। प्रोप्राइटर मोहम्मद ओवैस शमशुद्दीन, मोहम्मद अमानुद्दीन अब्बास ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बतौर मेहमान एजाज़ी साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस सीनियर कॉरपोरेटर के अलावा हारून खान व दिगर ने शिरकत की। तमाम ही मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनियत पेश की। तमाम ही ने अमीन्स फैमिली को दिली मुबारकबाद दी। मज़ीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बॉम्बे फुटवेयर अपनी तर्ज का मुनफरिद फुटवेयर शोरूम है, जहां जदीद दौर के नित नए डिज़ाइन के हम अक़साम के फुटवेयर मर्द व ख़वातीन, बच्चों व दो शिजाओं के लिए दस्तियाब है, जो अवाम की पहली पसंद साबित होने का मेहमानों ने इजहार किया। वाज़ेह है कि अमीन्स फैमिली तिजारत के मैदान में अपना अलहदा मुकाम रखती है और तिजारत के मुख्तलिफ मैदानों MBM इलेक्ट्रॉनिक, ARK हार्डवेयर, अल सईद ट्रेडर्स, MBM जैसे तिजारती मराकिज़ क़ायम किए। मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब मरहूम जो MBM तिजारती मरकज़ के बानी थे। इसके अलावा मरहूम ने अंजुमन इस्लामिया में जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी। मिली कामों में पेश रहे। बांसवाड़ा में एक ठग ने एक खातून को लूट लिया और तलाई जेवरात और 50,000 रुपये की नकदी चुरा ली। मुतासरे की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने, जिसने तफ्तीश की, मुलजिम को एक और शख्स के साथ गिरफ्तार किया, जिसने सोने का हार खरीदा था और इन्हें CCTV फुटेज की बुनियाद पर रिमांड पर भेज दिया। बांसवाड़ा में एक खातून को धोखाधड़ी से ठगने वाले ठग को पुलिस ने CC कैमरों की मदद से गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ओहदेदारा ने बताया कि M लक्ष्मी नामी खातून की मुलाकात साइलू नामी शख्स जो पेशे से आदि सारिख बताया गया से हुई और दोनों में बातचीत हुई। खातून ने बताया कि इसका 3 तोला तलाई जेवर 2 लाख की अवस मुथूट फाइनेंस में गिरवी है, जिस पर साइलू ने खातून को 50,000 लाने को कहा और माबाखिर रकम अपने पास से डालकर तलाई जेवरात निकलवाने का झांसा दिया और एक मुकाम पर बुलाया, जहां दोनों ने सेंधी पी, जिसके बाद साइलू ने लक्ष्मी के 50,000 सोने का हार और फोन लेकर रफू चक्कर हो गया। परेशान खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने CC कैमरों की मदद से साइलू को गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद रिमांड पर भेज दिया। అక్కడ కళ్ళు తీసుకొని తాగి ఆ తర్వాత అదే క్రమంలో మన బాన్స్వాడలోని కల్కి చెరువు సమీపంలోని రోడ్డు కట్ట వైపు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడిన సందర్భంలో మహిళకు మాటలు చెప్పి తీసుకొచ్చిన 50,000 రూపాయలు మరియు అదేవిధంగా ఆ మెడలోని దాదాపు 6 గ్రాములు గల గోల్డ్ గుండ్లను కూడా దగ్గరికి ఆమెను బెదిరించి అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది। ఈ విషయంపై మహిళ మొన్న 20వ తారీఖున వచ్చి జరిగిన విషయం తెలియజేసి
ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మేము మహిళను బెదిరించి మరి అదేవిధంగా దొంగతనం చేసినట్లుగా దౌర్జన్యం చేసి లాక్కెళ్ళినట్టుగా పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. అటు ఈ కేసులో భాగంగా ఆమెతో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి సీసీటీవీ ఫుటేజ్ మరియు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ప్రకారంగా అతని గ్రామమైన కొండాపూర్ గ్రామంలో తెలియపరుచుకున్నాం. దాని ద్వారా మేము అతన్ని ఈరోజు బాన్స్వాడలోని తాడుకోల్ చౌరస్తా వద్ద పట్టుకొని అతను ఏదైతే దోపిడీ చేసిన బంగారాన్ని మన బాన్స్వాడలోనే జ్యువెలరీ షాప్ ఓనర్ అయినటువంటి వెంకటరాముడు కూడా దగ్గర 20వ తారీఖు మరుసటి రోజునే అమ్ముకొని 40,000 రూపాయలు కూడా తీసుకున్నట్టుగా తెలిసింది. దానికి సంబంధించి ఆ సొత్తును కూడా జ్యువెలరీ షాప్ నుంచి రికవర్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని కూడా ఏదైతే గోల్డ్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడో అతని పైన కూడా కేసు నమోదు చేసి సాయిల్ను మరియు వెంకటరాములు ఇద్దరిని కూడా ఈరోజు గౌరవనీయులైన ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో డిఎస్పీ బాన్స్వాడ సార్ చెప్పినట్టుగా మా టీం అందరం కూడా ఈరోజు వాళ్ళ ఇద్దరిని కూడా పట్టుకొని బంగారం రికవర్ చేసి అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్ కూడా రికవర్ చేసి వాళ్ళ రిమైండ్ తరలించడం జరిగింది. बल्दियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात तय पाते ही उम्मीदवारों में बेचैनी शुरू हो गई। साबिक़ एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन और दरपल्ली के साबिक़ जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन और मुतालिका मंडलों के लीडरान अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए। शहर के विनायक नगर के श्री लक्ष्मी नगर में वाक़ साबिक़ एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की रिहाइशगाह बीआरएस लीडरों से खचाखच भर गई। दही हलके के मुख्तलिफ मंडलों के कायदीन जमा हुए और साबिक़ दही एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने दरपल्ली बाजिरेड्डी जगन साबिक़ जेडपीटीसी के साथ बल्दियाती इंतखाबात के पस मंजर में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बाजिरेड्डी ने मशवरा दिया कि पार्टी के जरिए तयशुदा उम्मीदवारों को जीतने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात को संजीदगी से लिया जाए और दही हलके में बीआरएस का झंडा लहराया जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि हर मंडल में सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है, इस पर तबादला ख्याल करने के बाद फैसला किया जाएगा। दूपल्ली पीएसीएस चेयरमैन भूमा रेड्डी ने कहा कि समाज को मुनाफा बख्श बनाते हुए हर तरह से तरक्की की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले को बेहतरीन सोसाइटी के तौर पर मुंतखब करने पर खुशी का इजहार किया। रंजल मंडल के तहत दुपल्ली सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी की सदारत में इजलास मुनाकिद हुआ। सबसे पहले सोसाइटी सेक्रेटरी जीवन रेड्डी ने जमा और अखराजात की तफसीलात पढ़कर सुनाई। बादशाह सोसाइटी के लेन देन पर तबादले ख्याल किया गया और मुतादिद करारदादें मंजूर की गई। बाकी किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ करने और हुकूमत की जानिब से किसानों को गुज़िश्ता सीजन का बोनस फ्राहम करने का फैसला किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सोसाइटी चेयरमैन भूमा रेड्डी ने कहा कि बैंक खाते में 23 लाख रुपए की नकद रकम जमा है और धान की खरीदारी के लिए हुकूमत से मजीद 48 लाख रुपए वसूल किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने समाज की तरक्की के लिए 3,16,000 रुपए की मंजूरी दी है और कहा कि हुकूमत से मिलने वाले फंड्स के साथ दूसरे कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने एमएलए सुदर्शन रेड्डी डीएसओ और डीसीओ का जिले की बेहतरीन कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर इंतखाब करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सोसाइटी डायरेक्टर्स प्रताप रेड्डी, गंगाधर, साबिक सरपंच साई रेड्डी, दिगर किसान मौजूद थे। फार्मर प्रोडक्शन आर्गनైజేషన్ కింద సెలెక్ట్ చేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మళ్ళా రీసెంట్గా జరిగినటువంటి మా యొక్క ఈ బాడీ 6 మంత్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్టెన్షన్ చేసిరో ఉన్న సొసైటీలలో 89 సొసైటీల్లో 43 సొసైటీలు సెలెక్ట్ చేయడం బాడీలు ఉంచడం జరిగింది. దానిలో మా యొక్క బాడీని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేసిన దానికి మా యొక్క ఎమ్మెల్యే గారికి, మా యొక్క టీసీబీ బ్యాంకు డీసీఓ గారికి, బ్యాంకు మేనేజర్ గారికి, చైర్మన్ గారికి పేరు పేరున మా యొక్క రైతుల తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వచ్చే సీజన్ ఏదైతే ఉందో, గత సీజన్లో ఉన్న బోనస్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా మా రైతులకు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు, ఇవ్వాలని కోరుచున్నాం. ప్లస్ 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏదైతే ఉందో ఇంకా చాలామంది రైతులకు వచ్చేది ఉంది, ఆ రైతులకు కూడా రాలేదు కాబట్టి చెల్లి कोना समंदर के सदर एस महेंद्र रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि बल्दियाती इंतखाबात में गांव में कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किए गए वादों को पूरा करते हुए हमने गरीबों को इंदिरा मकाना देकर अपना घर बनाने का खौफ पूरा कर रहे हैं। कमरपल्ली मंडल के कोना समंदर गांव में मुकामी कांग्रेस कायदीन ने 17 मुस्तफीदीन को तकरीबन 4,50,000 रुपए के CMRF चेक हवाले किए। बादशाह पार्टी की
देही शाख सदर महेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से होने वाली तरक्की को देखकर दीगर पार्टियों के कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे। उन्होंने कहा कि खवातीन को मुफ्त बस सफर, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली की फ्राहमी, किसानों के खर्च की माफी और इंतखाबात में वादे के मुताबिक बोनस देने का सहरा कांग्रेस हुकूमत के सर जाता है। सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए उन लोगों के लिए फंड्स की मंजूरी दी जा रही जिन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर प्राइवेट अस्पतालों में तिब्बी खदमात हासिल की है। उन्होंने मुतासिरीन के साथ खड़े होने पर सीएम रेवंत रेड्डी और बालकुंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी डायरेक्टर श्रीनिवास, बालकुंडा कांग्रेस पार्टी यूथ नायब सदर बी सतीश, कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर भूमा रेड्डी, सुधाकर, दीगर कायदीन मौजूद थे। దాదాపు 4,50,000 వరకు ఈరోజు లబ్ధిదారులకు అందజేయడం జరిగింది. ఇవి శాంక్షన్ చేసినటువంటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అలాగే ముత్యాల సునీల్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. ఈ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఎవరిని నిలబెట్టినా అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు. అలాగే కొందరు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కీలక నాయకులు, ఇంతకుముందు అత్యంత మంచి పదవులు చేసిన వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీతో టచ్లో ఉన్నారు. సయము సందర్భం చూసి వారిని కూడా జాయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना में लोकल बॉडी इंतखाबात का शेड्यूल जारी, 3 मरहलों में होंगे इंतखाबात। प्रजवानी में मौसूल होने वाली शिकायतों को ओहदेदारान पूरी यकसुई के साथ हल करें, जिला कलेक्टर। आबी ज़खायर की सतह में बतदरीज इजाफा और आबी ज़खायर से पानी का अखराज, अतराफ के इलाकों में पानी ही पानी, फसलें डूब गई, किसान परेशान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।